Good morning, students. Let's start today's session with lesson 7, variation. In the last session, we have already studied about direct variation. Now, today we are going to study about inverse variation. So, what is inverse variation? Sometimes we observe that the variation in values of one quantity is just opposite to the variation in the values of another quantity. If the value of one quantity increases, the value of other quantity decreases in the same proportion. This is termed as inverse variation, and the two quantities are said to be inversely proportional to each other. Inverse variation. Points to remember. First point, the statement x is inversely proportional to y can also be expressed as there is inverse variation in x and y. Second point, if x and y are in inverse proportion, x into y is constant. Third point, assuming the constant to be k, it is easy to solve a problem. Fourth point, if x varies inversely as y, then x into y is constant. X inversely varies as y is written as x is inversely proportional to y. If x is inversely proportional to y, x is equal to k upon y, or x into y equal k. This is the equation of variation. K is the constant of variation. Children, as you have studied the important points about the inverse variation, let us revise once again about the equation of inverse variation. Okay, now in the last session we have already studied about direct variation. Yeah. So what was the equation of direct variation? Direct variation का equation क्या था? Where x is directly proportional to y, it means x is equal to ky, where k is constant of variation. ये equation था direct variation का. But now in today's session, inverse variation का equation क्या है? Where x is inversely proportional to y, तो इसके दो इक्वेशंस होंगे, x इक्वल टू k अपॉन y, ये फर्स्ट है, और वी कैन से x इंटू y इक्वल k, वेर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. Okay, so what is the equation of inverse variation? X into y equal k, where k is constant of variation. Now let us see some examples. In a table, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है? a, b, a into b. Now, if a is inversely proportional to b, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? a इंटू बी इक्वल k, where k is constant of variation. So same way यहाँ पे आप कौन सा इक्वेशन दिखा रहे हैं?
A into B equal K, and it is the equation of inverse variation. So and we will follow this equation. Okay, now first problem. First is A is inversely proportional to 1 upon B. That is, इसका इक्वेशन क्या होगा? A into B equal K. ओके, अब A कितना दिया है? When A is given as 6, B it is given as 20, and you have to find the constant of variation. So what you will do? What is the equation? Therefore A क्या है? 6. First you will write again the equation. A into B equal K. You have to find this constant of variation. तो A कितना दिया है? 6 into B कितना दिया है? 20. 6 20s are 120. So 120 is constant of वेरिएशन. तो हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या मिला? 120. देयरफॉर A इंटू बी कितना मिला आपको? 120. सो यू विल राइट हियर 120. ओके, नाउ सी द सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम में आपको A कितना दिया है? 12. B आपको फाइंड आउट करना है और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है सभी का क्या रहेगा? 120, कि आपने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है. ना सेकेंड इज A is given as 12. Okay, B you have to find out, and you know the constant of variation, that is 20. Now what is the equation? A into B equal K. ये इन्वर्स वेरिएशन का इक्वेशन है. A इंटू बी इक्वल के. अब A क्या दिया है? 12 इंटू बी दिया है क्या? नहीं दिया है. तो आप जैसे कि वैसे लिखेंगे B इक्वल K. क्या मिला है अपने को? 120. नाउ यू हैव टू फाइंड B. देयरफॉर B इक्वल 120 अपॉन 12 व्हेन इट विल कम ऑन द राइट हैंड साइड, डिवाइड. ओके, तो कितना होगा? 12 1 ज़ा 12, 12 10 ज़ा 120. तो आपको B कितना मिला है? 10. सो यू विल फिल दिस कि आपको B मिला है 10. अब नेक्स्ट थर्ड वन है. A कितना दिया है? 15. B दिया है क्या? नहीं, आपको फाइंड आउट करना है. और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन तो आपको पता ही है, क्या दिया है? 120. सो अगेन यूज द सेम फॉर्मूला इक्वेशन. A इंटू बी इक्वल के. A दिया है 15 इंटू बी आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल के क्या है? 120. सो देयरफॉर B इक्वल 120 अपॉन 15. ओके, तो 15 के टेबल में 120 जाता है. हाँ, 15 1 ज़ा 15, 15 8 ज़ा 120. तो आपको क्या मिला है? B की वैल्यू 8. I hope you have understood this. Now we will study practice set 7.2, page number 38 of your test book. Okay, I have taken the first question of problem set 7.2. First question I will read for you. The information about numbers of workers and number of days to complete a work is given in the following table. Complete the table. Okay, यहाँ पे टेबल दिया गया है. ओके, बट आपके टेक्स्ट बुक में 2 कॉलम्स दिए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स
days and third column is not mentioned, but अपन mention करेंगे to know, जैसे आपने अभी example देखा कि number of workers let it be x, okay, days let it be y. तो inverse variation का equation क्या होगा, x into y. जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा था a इंटू बी, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसे आपने नंबर ऑफ वर्कर क्या लिखा x और डेज को लिया y, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x इंटू वाई दैट इज इक्वल k. ओके, नाउ लेट अस फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन x इंटू वाई. तो फर्स्ट क्या दिया गया है, फर्स्ट x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. ओके, now therefore x क्या दिया है 30 और y क्या दिया है 6. आप इसको कोई भी और अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं आपके हिसाब से. आई हैव गिवन हियर x एंड y दिया है 6. नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन, क्या होगा, अगर x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इंटू वाई इक्वल k, वेर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. And this you have to write, where k is constant of variation. ओके, ना यहाँ पे x इंटू वाई है, तो x कितना दिया है 30 इंटू वाई कितना दिया है 6. सो 30 इंटू 6 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 6, 6 जीरो ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18 यानी 180 आता है. तो 36 ज़ा 180 यानी आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना मिला है 180. सो यू विल राइट हियर 180 एंड जस्ट अंडरलाइन दिस विथ पेंसिल, ताकि आपको पता चले कि आपको इसकी वैल्यू क्या मिली है. ठीक है, तो आपको फर्स्ट की वैल्यू मिला है जहाँ पे x दिया था 30, y दिया था 6 एंड देन यू हैव टू फाइंड द कांस्टेंट. सो आपको क्या मिला 180. नाउ सेकेंड प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो इसमें x की वैल्यू क्या दिया है 20 और y की वैल्यू क्या दिया है 9. सो लेट अस राइट x इक्वल दिया है 20 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल 9. ओके, so again what is the equation, x into y equal k, where k is constant of variation. तो x क्या दिया है 20 into 9. So again 20 into 9, 9 जीरो ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18, तो कितना है आपका 180. Again in every step you have to write k is constant of variation and please make the rough column. तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 180, तो यहाँ पे भी आप लिखोगे 180. नाउ अगर आप थर्ड कॉलम में जाइए, यहाँ पे y दिया है 12, x दिया है क्या नहीं दिया है, तो यहाँ पे x यू हैव टू फाइंड. ओके, और y की वैल्यू क्या दिया है 12. So what is the inverse variation equation, x into y equal k, और k तो आपको पता ही है, सबका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या मिल गया है आपको
180। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 180। ओके, x इंटू वाई इक्वल k, where k is constant of variation। अब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो आप x एज इट इज लिखेंगे, इंटू वाई क्या दिया है 12 इक्वल कांस्टेंट ऑफ k का वैल्यू क्या आपको मिला है पहले ही 180। देयरफॉर x इक्वल 180, जब 12 राइट हैंड साइड में आएगा डिवीजन अपॉन 12, तो कितना आ जाएगा 15। 12 1 ज़ा 12, 12 15 ज़ा 180। देयरफॉर x इक्वल 15। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिला है 15, एंड दिस यू हैव टू पुट विथ पेंसिल इन द बॉक्स। ओके, अब बच्चों हमने फर्स्ट का किया है, सेकंड का करके दिखाया और थर्ड भी करके दिखाया। अभी आपका होमवर्क है, यू हैव टू सॉल्व फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज सॉल्व एंड सी। ठीक है, फोर्थ का और फिफ्थ का। आपको इसका आंसर बता दूँ, फोर्थ का आंसर आपका आना चाहिए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए जहाँ पे आपको वैल्यू दिया है 10, नंबर ऑफ वर्कर्स की वैल्यू दिया है 10, और आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ऑलरेडी आया है 180 एंड यू हैव टू फाइंड y। तो इसका आपका आना चाहिए 18। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा 18, ये और ये इट विल बी एज योर होमवर्क। और फिफ्थ का जो है आपका, उसका आपको नंबर ऑफ वर्कर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और डेज दिया गया है 36, तो इसका आंसर आएगा आपका 5। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट का अपना ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट प्रॉब्लम, उसका आंसर 180। अगेन सेकेंड का आंसर 180 आया है, बोथ फाइंडिंग कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। थर्ड का अपने को नंबर ऑफ वर्कर्स को फाइंड आउट करना था, जो कि आंसर आया है 15। एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। फोर्थ का आंसर क्या है 18 और फिफ्थ का आंसर है 5। तो सॉल्व दिस। ओके, now let us take question number 2. Again I am repeating, question number 1 में we have already solved the first 3 columns, फोर्थ एंड फिफ्थ आपका होमवर्क रहेगा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है पेज नंबर 38 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन दिया है, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। जैसे फर्स्ट दिया है P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, और इफ P की वैल्यू क्या दिया है 15 एंड Q की वैल्यू क्या दिया है 4। ठीक है, सो हाउ यू विल सॉल्व इट। सो व्हाट यू विल राइट फर्स्ट, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर P इंटू Q इक्वल K, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये इन्वर्स वेरिएशन का इक्वेशन है। ओके, अब आपको पता है कि P की वैल्यू दिया गया है, क्या दिया है 15 इंटू Q की वैल्यू 4 इक्वल K, because you have to find the constant of variation. Therefore 15 4s are 60। तो क्या मिला आपको K की वैल्यू 60। Therefore आपको constant of variation कितना मिला, कितना मिला है 60। और उसी में सेकंड क्वेश्चन क्या था आपको,
कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो कि हमने फाइंड आउट किया है, कितना मिला है 60. एंड नाउ यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. सो हाउ यू विल राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन? देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, क्या है इक्वेशन? P इंटू क्यू इक्वल, क्या मिला है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन? 60. Now let us take second example. Second example दिया है Z is inversely proportional to W, जहाँ पे Z की वैल्यू क्या दिया है 2.5 और W की कितना दिया है 24. So what is the equation? Z is inversely proportional to W. तो इसका इन्वर्स वेरिएशन का इक्वेशन क्या होगा? Z इंटू W इक्वल K, where K is constant of variation. ओके, अब Z की वैल्यू कितना दिया है 2.5 इंटू W कितना दिया है, W की 24 इक्वल K. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 24. 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 9 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5. तो एक डिजिट के पहले 0.10 है, 0 के पहले कितना मिला 60. अगेन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू क्या मिला है अपने को 60. तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आएगा? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. देयरफॉर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना मिला है 60. उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था? देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन? इस इक्वेशन क्या दिया है? Z इंटू W इक्वल, कितना मिला है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन 60. यानी आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन में कितना मिला है 60. और इक्वेशन हाउ यू विल राइट? Z इंटू W इक्वल 60. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. X इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर. ओके, जहाँ पे S की वैल्यू क्या दिया है 4 और T की वैल्यू क्या दिया है 5. सो यू राइट द फॉर्मूला. S इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर. So what is the equation? S into T square equal K, where K is a constant of variation. Okay? अब S की वैल्यू क्या दिया है 4 इंटू T की वैल्यू क्या दिया है 5. अब T स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर इक्वल K. देयरफॉर 4 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 5 जा 25. सो 4 इंटू 25 इक्वल K. नाउ मल्टीप्लाई 4 इंटू 25. 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 9 10, कितना मिला 100. देयरफॉर 100 इक्वल K. तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या मिला है 100.
Therefore, constant of variation इक्वल 100 और उसका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या रहेगा? Therefore, the equation of variation is, what is the equation? S into t square इक्वल क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k यानी 100. Now let's see the assignment. I have given you page number 38. प्रैक्टिस सेट 7.2 ये आपने स्टार्ट किया था अपन ने. उसका क्वेश्चन नंबर 1 का टेबल जो आज हमने पढ़ा है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ये आपका होमवर्क है. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 का वी हैव ऑलरेडी सॉल्व ऑल द 3 क्वेश्चन. ओनली 4th क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व एंड द आंसर्स आर गिवन हियर. क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th का आंसर है उसका 18 है और 5th का आंसर है उसका 5 है. और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है उसका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या आना चाहिए? 4th क्वेश्चन का 45. थैंक यू.